Welcome to the fifth session of this webinar series on urban farming. Uh, Today, we will be discussing the connections between urban farming and management of waste. Before anything, I would like to tell you that there is an option of interpretation on this webinar. You can check the option for language interpretation. It's there on your Zoom screen. For listening the interpretation in Hindi, please switch to Japanese. Please note that Japanese is Hindi and English is English. Magdi, who is a student at IP University Delhi, she is helping us with the interpretation in Hindi. Thank you so much, Magdi. Please also note that because of the bandwidth issues, we will be broadcasting the video as it would, we are not broadcasting video of all the panelists because it would interfere with the clarity of the audio. But the presentation of all the speakers would be visible on your Zoom screen. For a better accessibility of the discussion, we will also be providing a live summary of the discussion in Hindi as well as in English. Please keep watching the chat box for the same. Mohini, who is an independent writer, she is an associate of People's Resource Center. She is helping us with this in Hindi. Mohini, thank you so much for helping. And Ruchi, who is also an associate with People's Resource Center and is the founder of Humankind. Is helping us with the brief in English. Thank you, Ruchi. I request you all to type your questions if they arrive in the Q&A box only. Please also mention the panelist who you want to address or respond to the question. It would be easier for us to follow up during Q&A. The presenters would be presenting for 10 minutes each. And after that, the session will be open for discussion. If you want to speak in, you want to ask questions by speaking, you have to wait till 4:15 when the session will be formally concluded, and we will open this session for other participants to speak. आप अगर चाहें तो अपने क्वेश्चन को हिंदी में भी पूछ सकते हैं, हिंदी में टाइप करके Q&A बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और सेशन के अंत तक रुककर आप हिंदी में अपनी बात को चर्चा में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. A quick note about the organizers. People's Resource Center is a forum to create community resources for social transformation and to build perspectives and alternatives. PRC engages with movement groups and communities in the places with the ongoing or potential struggle over resources, and it regularly undertakes policy monitoring, research and documentation, and grassroots networking to generate resources for collective resistance and creative action. Institute for Democracy and Sustainability, who's the other organizer of this webinar. IDEAS has carved out a niche for itself among the people-centric organizations while working actively on the issues of social transformation, including sustainable urban transport, equal road rights, right to livelihood, and urban agriculture for the last 3 decades. IDEAS is a constituent member of National Alliance of People's Movement, Sustainable Urban Mobility Network of India, SUMNET, Car Free Network, and other such networks. And it is also part of national and international forums. For any updates on this webinar, please follow our Facebook page, which is fb.com/resourcegrab. We are also providing the recordings of all the sessions on our YouTube channel. The link will be pasted in the chat box. Please look for that. The event, we just want to clarify that it was planned as a convention and it was being hosted by IIT Delhi. Due to the COVID situation, we are not doing it as a webinar series. Panelists for today and the other days were shortlisted after a doubly blind peer review process. And we thank our reviewers who took time to review the work. We are also highly thankful for all those who submitted their work. I will go through some of the modalities for participation. As I said, you can type your questions in the Q&A box. The presentations will be each for 10 minutes. And please wait till the end of the webinar if you want to ask a question by speaking. If you wish to speak, please raise your hand. There is an option for that in the app. You can go there and I will note the person raising the hand. Okay, now I welcome Raju Bhise.
who has been working on the issues of urban poverty and urban governance. He is associated with multiple civil society groups, including Yuva, Sadbhavana Sangh, workers' movements in unorganized sector, housing right to the city, and so on. Welcome, Rajuji, and thanks for being the moderator today. And the session is now over to you, Rajuji. हेलो, नमस्कार। आवाज आ रही है? जी, आ रही है। आज के वेबिनार में सबका स्वागत। आज का जो विषय है वेस्ट इन द सिटी, शहरीकरण की जो प्रक्रिया जो गति से चल रही है उसमें अर्बन जो वेस्ट है वो एक बड़ी एक इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इशू करके शहर के सामने आज है। और जो प्लानिंग अर्बन इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन का जो एक रिपोर्ट है उसमें ये स्टैटिस्टिक है कि 62 मिलियन टन वेस्ट जो अर्बन इंडिया है वो निर्माण करता है और 2030 तक ये 165 मिलियन टन तक जाने की संभावना है। और इसमें 51% जो वेस्ट है वो ऑर्गेनिक है, जिसके ऊपर कुछ प्रोसेस की जा सकती है, और 32% ऑर्गेनिक है और 17% जो है रिसाइक्लेबल है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो सिर्फ ये सॉलिड का मुद्दा है, तो उसके साथ और भी दूसरे मुद्दे हैं, जैसे पानी जो एक वेस्ट, मतलब शहर को पानी आता है लेकिन वो वेस्ट के स्वरूप में बाहर जाता है। मलमूत्र ये भी एक वेस्ट का एक नेचर ऑफ द वेस्ट है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम अर्बन फार्मिंग के बारे में सोच रहे हैं तो ये वेस्ट को किस तरह से रिसाइकल और रीजनरेट किया जा सकता है ताकि हम ये जो अर्बन फार्मिंग की जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे यहाँ आज जो है 2 प्रेजेंटेशंस है और 3 लोग वो करने वाले हैं। पहला जो प्रेजेंटेशंस है, बेसिकली जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इनको बायो फर्टिलाइजर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल अर्बन फार्मिंग में किया जा सकता है। इसके ऊपर ईशा और हरी, ये 2 जो है वो अपनी बात रखने वाले हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात को शुरुआत करें। हेलो हेलो हेलो, हाँ आप कर सकते हैं जी। ईशा जी, मेरी आवाज आ रही है? एक सेकेंड। हेलो, शुरू कर मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज? ओके, आ रही है। तो okay, so first of all, everyone, I am Isha Vishan. I did PhD in waste management from IIT Guwahati. After that, I did postdoc from IIT Kanpur. Or my specialization is in composting and environmental microbiology. So continuing that, I started my company with Mr. Hari Shankar. So my company will be in this presentation also. And my company's name is Agnes Waste Management Private Limited, which is incubated in SIC IT Kanpur. So we have been working since 2 years in our domain, and so today I'm here before you all. Before starting, first of all, I would like to thank People Resource Center Committee, IIT Delhi, for organizing this webinar even in the current crisis that we are in. So it's highly commendable, and thank you very much for giving me the opportunity for being part of this. So
मैं अपना प्रेजेंटेशन बहुत हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके दूंगी ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो टाइटल आप देख सकते हैं कि वैल्यूराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोफर्टिलाइजर एंड अप्रोच टुवर्ड्स अर्बन फार्मिंग। तो इसी को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी। इट इज सेड दैट हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो स्टोन एज में रहते थे, उसके बाद कहा जाता है कि गोल्डन एज आ गई और हम इतने ऑर्गेनाइज और डेवलप्ड हो गए कि वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो गई। और आगे आप देख सकते हैं वी आर इन द एज ऑफ गार्बेज। Sorry, Isha, sorry, just a small request. Please speak a bit loudly because there's a request that audio is weak. Okay. Sorry for interrupting. Sorry. Can you hear me now? I think it's better. Am I audible? Yes. Okay. Please. I'll present like this. Okay. तो अभी तक जो मैंने बात की कि हम लोग इतने अर्बनाइज और डेवलप्ड हो गए हैं, तो हम एक गार्बेज में है जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वेस्ट हमारे हम सभी जानते हैं। तो देखते हैं, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया की। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो यहाँ पे अराउंड 450 मिलियन टन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट और क्रॉप रेसिड्यू मिला के पर ईयर प्रोड्यूस होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये वेस्ट उठा के डंप कर दिया जाता है, अनसाइंटिफिक वे में भी डंप कर दिया जाता है लैंडफिल में। और लीचेट और ग्राउंड वाटर टेबल और ग्रीन हाउस गैस, ये सारी प्रॉब्लम तो है बहुत सारी। और अदर साइड भी देखें आप कि इस वेजिटेबल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए ढेर सारा केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज होता है, इम्पोर्ट भी होता है, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो दोनों साइड से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मगर कहते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ये वेस्ट नहीं है, ये वेस्ट एक रिसोर्स हो सकता है जिससे हम एक नहीं तीन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम इस ऑर्गेनिक वेस्ट को हम एक यूजफुल सोर्स बना सकते हैं बायो फर्टिलाइजर का। तो एक तो वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, दूसरा हमारा सस्टेनेबल अर्बन फार्मिंग को हम असिस्ट कर रहे हैं, तीसरा हम हाइपर लोकल मार्केट भी क्रिएट कर सकते हैं हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे जो सिटीज के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे प्रपोज कर रहे हैं सोल्यूशन जिसमें सिंपल सेग्रीगेटेड ऑर्गेनिक वेस्ट हम मिक्स कर सकते हैं माइक्रोबियल इनोकुलम के साथ, जो कि एक माइक्रोबियल कंसोर्शिया है एफिशिएंट माइक्रोब्स का, जो ना कि वेस्ट को डिग्रेड करते हैं, वो एंड में एफिशिएंट कंपोस्ट भी बनाते हैं। इस टेक्निक में हम वेस्ट को मिक्स करके इनोकुलम के साथ हम नेट बैग्स में डाल के, आप देख सकते हैं पिक्चर में एक सिंपल ड्रम है 200 लीटर का, उसमें हम डाल रहे हैं अराउंड 150 kg ऑफ वेस्ट है, 40 लीटर ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर एंड 10 kg ऑफ सॉलिड कंपोस्ट प्रोड्यूस हो जाता है विद इन 12 to 20 डेज। तो इस काम की नोवेल्टी ये है कि एक तो ये दोनों लिक्विड एज वेल एज सॉलिड फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रहा है कम समय में, 12 से 20 दिनों में, एज कम्पेयर टू दी अदर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं। और इससे जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस होता है वो बायो फर्टिलाइजर है, उसमें एफिशिएंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हैं जो हमारे एक तो कंपोस्ट को फास्ट डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं, और जब हम इस फर्टिलाइजर को सॉइल में यूज करते हैं तो वो प्लांट्स की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग में भी हेल्प कर रहा है। और एक डिसेंट्रलाइज मेथड है, कम स्पेस चाहिए और सिटीज में भी ये यूज हो सकता है। तो हमने जो रिगरस स्टडी की इसकी, तो हमारा जो इनोकुलम हमने जो कंसोर्शिया तैयार किया उसमें कुछ एफिशिएंट स्ट्रेन्स है बैसिलस की। जनरली मार्केट में जो बायो फर्टिलाइजर जो अवेलेबल है अभी तक, मतलब जो है मोस्टली जो राइजोबैक्टीरियम एजोटोबैक्टर हम जैसे जानते हैं, बैसिलस स्ट्रेन्स भी काफी हेल्पफुल हैं, जिन पे अभी काफी रिसर्च हो रहा है। तो इनको हम माइक्रोबियल कंसोर्शिया की तरह यूज कर सकते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेन्स है उसमें एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये बायोफिल्म प्रोड्यूस करती है। उसके वजह से क्या है कि ये प्लांट्स को हेल्प करते हैं मैक्रो एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपटेक करने में, जो अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होता है प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, और दूसरी तरफ हम पहले ये दिखा ही चुके हैं कि ये वेस्ट को डिग्रेड करने में हेल्प करता है, ऑगमेंट करता है, फास्ट इट अप करता है। तो इन स्ट्रेन्स पे हमने काम किया। तो इस काम की फिजिबिलिटी तो ये है कि एक तो ये इकोनॉमिकल है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, और इको फ्रेंडली तो ये है ही। एक बहुत लो इन्वेस्टमेंट चाहिए, इवन फार्मर अपने खेत पे अपने घर में भी इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर सकता है। बहुत कम ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, और जो
फर्टिलाइजर जो प्रोड्यूस होता है वो ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजीज में भी यूज हो सकता है, फार्मिंग की टेक्नोलॉजीज में भी यूज हो सकता है। तो हमने स्टडीज की आगे बढ़ते हुए, तो हरी आगे बढ़े। हाँ, तो ये हमने इसी के बेसिस पे हमने आगे काम किया। तो हमने पूरे IIT कानपुर में वेस्ट एग्रीगेशन का काम स्टार्ट किया, ट्रीटमेंट का काम स्टार्ट किया। उसमें आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं सेग्रीगेटेड ऑर्गेनिक वेस्ट का एवरी डे, और हमारे साइट पे ले जाते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। तो करंटली हम अराउंड 1.5 टन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट पर डे ट्रीट कर रहे हैं IIT कानपुर में ही, और 3 टन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट हम ट्रीट कर रहे हैं कानपुर सिटी में भी। वी हैव बीन वर्किंग विद कानपुर नगर निगम ऑल्सो। तो जो भी हमारा कंपोस्ट इसमें से प्रोड्यूस हुआ उसकी भी हमने स्टडी की। तो इन पिक्चर्स, जैसे कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें कि फ्लावरिंग जो प्लांट्स हमारे कैंपस में, तो जिन प्लांट्स में हमारा कंपोस्ट यूज किया, जैसे आप रेड सर्कल में देख रहे हैं उसमें कंपोस्ट नहीं डाला था, उसकी ईल्ड कम थी। ग्रीन सर्कल में देख रहे हैं उसमें ईल्ड बढ़ गई हमारे कंपोस्ट से। और कुछ किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पीलीभीत में केले की खेती करते हैं, तो हमारे लिक्विड फर्टिलाइजर को उन्होंने ड्रिप इरिगेशन से भी यूज किया, तो उनके भी रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। सकसूपुरवा विलेज है कानपुर के पास में ही, वहां पे भी गार्लिक की खेती में भी यूज हुआ, तो वहां पे भी फायदा हुआ। और एक नई चीज और इसमें थी कि जो लिक्विड फर्टिलाइजर जो हमारा जनरेट होता है, तो वो डायरेक्टली हम स्प्रे भी कर सकते हैं प्लांट्स पे, तो इट कैन एक्ट एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, एक बायो पेस्टिसाइड की तरह भी काम करता है। तो नेक्स्ट पिक्चर में जैसे कि इस प्लांट में, गुआवा के प्लांट में हमारे कीड़े लगे हुए थे, जो हमने स्प्रे किया तो उसके बाद रिजल्ट अच्छे आए। तो दोनों प्रॉब्लम बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड की तरह काम कर रहा है। तो ये सारी चीज अभी तो टेक्निकलिटीज मैंने बताई। अब कैसे इस टेक्नोलॉजी से हम इकोनॉमिकली फायदा पहुंचा सकते हैं, कैसे इससे बिजनेस जनरेट कर सकते हैं फार्मर्स को, और अर्बन फार्मिंग में कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो मैं नाउ रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर हरिशंकर को कि वो आगे एक्सप्लेन करें इस पे। थैंक यू ईशा। थैंक यू पीपल रिसोर्स सेंटर की टीम जो इस वेबिनार को करा रही है, और जो की एसेंशियल टॉपिक्स हैं उसमें से एक मैंने चुना है, और ऐसे सिचुएशन में भी इस तरह का वेबिनार से काफ़ी लोगों को जोड़ा जा रहा है। अगर जैसा कि टेक्निकलिटीज़ की बात ईशा ने की, उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल है कि कंपोस्ट बनाकर खेती की जा सकती है, वो सिर्फ थ्योरी में नहीं, एक बिजनेस के मॉडल में भी सही है, और दूसरी चीज़ कि सस्टेनेबल है, इसको किया भी बड़े आराम से जा सकता है। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको कानपुर का लेते हुए मैं बताऊं, क्योंकि यहाँ sorry again for interruption, there is a request to speak louder. ठीक है, तो इज इट बेटर? I think Hello? yes. तो कानपुर की अगर हम बात करें, कानपुर में अभी जिस तरीके से हम लोग इंस्टीट्यूट, प्रीमाइसेस, अपार्टमेंट्स, होटल्स के वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं, और बहुत से जगहों में डिसेंट्रलाइज सिस्टम होने के कारण उन्हीं अपार्टमेंट्स और होटलों के अंदर ही उनका कंपोस्ट तब्दील हो जा रहा है खाद में, बिना किसी एनर्जी के और बिना किसी बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन के। और यही खाद हम फिर काफ़ी सारे किसानों तक पहुंचा पा रहे हैं। उन्नत भारत अभियान एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके तहत IIT कानपुर ने खुद ने 5 गांव गोद ले रखे हैं। उन गांवों में ये खाद जा रहा है। हमारे साथ खुद कई सारे FPO जुड़े हुए हैं जिन तक ये खाद पहुंच रही है, और इनसे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सिटी के लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये सिस्टम लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग कम हो जा रही है। दूसरी चीज़ कि इससे उपजने वाली जितनी जो सामग्री है, जितने फल और सब्जियां हैं, वापस वो शहरों तक और उन्हीं अपार्टमेंट तक पहुंच पा रहा है। मैं इसी संदर्भ में मैं आगे दिखाता हूँ कि अगर हम इसके एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें, ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजी हैं जो इंडिया में वर्क कर रही है। तो एक तो कि कन्वेंशनल मेथड से काफी कम समय, 12 दिन गर्मियों में और 20 दिन सर्दियों में, जनवरी के महीने में भी आप कंपोस्टिंग 20 दिन में कर पा रहे हैं इस तकनीक से, और एक बैच में 100 से 130 किलो वेस्ट
जो है आपका कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये आराम से स्केल भी किया जा सकता है। बड़े बड़े सोसाइटीज में वहाँ का वेस्ट वही खाद बन जाएगा, और वही जैसे कि हमारे साथियों ने पिछले सीरीज में बताया, रूफ टेरेस फार्मिंग के बारे में बात की। उन टेरेस फार्मिंग को ये हेल्प कर सकता है कि आप आसपास के गार्डन्स में, अपने छतों पर इससे खेती कर सकते हैं, इससे बने हुए फर्टिलाइजर की खेती कर सकते हैं। अगर सरप्लस में प्रोड्यूस हो रहा है तो आप आसपास के गांव तक भी इसको भिजवा सकते हैं। जो रिव्यूअर्स के भी कंसर्न थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैं उनको साथ लेता चलूं कि इसमें स्पेस कितना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। अगर एक सिस्टम की हम बात करें जिसकी कैपेसिटी 100 से 130 किलो है, उसको करने में 1500 रुपए का खर्च आएगा। 1500 रुपए के खर्च में आपको एक ड्रम चाहिए, एक नीचे टैप चाहिए, सिंपल एक जरीकेन चाहिए, और 2 फीट बाई 2 फीट का सिर्फ एक जगह चाहिए जहां पे आप इस सिस्टम को रख सकते हैं। तो आप घर के छत पर या घर के गार्डन में इसको बड़े आराम से रख सकते हैं। और अगर हम इसके रेकरिंग कॉस्ट की बात करें कि इसमें खर्च कितना आएगा हर महीने, तो 200 रुपए में 1 लीटर इनोकुलम से 200 किलो वेस्ट ट्रीट हो सकता है। अगर 4 लोगों का परिवार है तो आप तकरीबन 6 महीने का कूड़ा 200 रुपए में ट्रीट कर सकते हैं। तो बड़े आराम से कोई भी पर्सन, इसमें बार बार का लागत भी नहीं है। आप एक बार अगर 2 लीटर इनोकुलम लीजिए तो साल भर अपना वेस्ट, आप ऑर्गेनिक वेस्ट अपने घर से बाहर नहीं फेंकेंगे, जो कि अभी के वक्त में बहुत बड़ा न्यूसेंस क्रिएट कर चुका है हमारे सिटी में। और कोई भी कॉमन इंसान ये सिस्टम को बड़े आराम से ट्रीट कर सकता है, यूज कर सकता है। 100 किलो का वेस्ट में 500 ml 500 ml इनोकुलम को 2 लीटर पानी में मिला के, यू जस्ट हैव टू स्प्रिंकल ऑन द वेस्ट एंड पुट इट इन ओनियन बैग एंड डंप इट इन द ड्रम। ये ओनियन बैग का प्रयोग सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि जब वेस्ट डिग्रेड हो जाएगा तो उसको निकालने में आपको आसानी होगी। और इससे बनने वाले जो खाद है, जो कि 2 तरह का है, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड को आप 1 लीटर लिक्विड कंपोस्ट को 20 लीटर पानी में मिला दें और अपने खेती में और अपने गार्डनिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अभी की बात करें तो ये पायलट लेवल से आगे बढ़ के अब इसको हम स्केल कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। तो हमें कई जगहों पे, कई अपार्टमेंट्स में ये सिस्टम लगा हुआ है। पूरे IIT कानपुर के अंदर इस विधि से खाद बनाई जा रही है, सारा वेस्ट मैनेज किया जा रहा है। परमठ मंदिर है जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ लीफ वेस्ट, फ्लावर वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वहां पे ये पायलट लेवल पे स्टार्ट हो चुका है। जेल में, होटल्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, 5 बड़े पार्क्स हैं जो कानपुर के, उनको मैनेज किया जा रहा है इस तकनीक से। कई सारे बंगलोज हैं और घर हैं ऐसे कानपुर में जहाँ पे छोटे बड़े सिस्टम लगे हुए हैं। हेलो, से खाद खुद बनाता है। हरी, आपको अभी थोड़ा 3 मिनट टाइम है। जी बिल्कुल, हो जाएगा। और एक बड़ा प्रोजेक्ट भी इसी तकनीक पे आ रहा है कि पन की गौशाला है जहाँ पे 2000 पशु हैं, सरकारी गौशाला है, जिनमें गोबर से इसी तकनीक से खाद बनाई जाएगी। अक्सर हाँ, गोबर से खाद बनाने में समय बहुत ज्यादा लगता है। इस विधि से वो खाद 1.5 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर तैयार हो जाएगी। ये हम कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं जो हमारे काम के हैं। तो अलग अलग तरीके के ड्रम जो कमिश्नर के साथ हम लोग काम करते हुए अलग अलग अपार्टमेंट्स में लगा दिए। अच्छी बात यह है कि अपार्टमेंट्स के अंदर ये सिस्टम को लगाया जा सकता है। इसमें किसी भी तरह का स्मेल नहीं है जो आपको आपके रोजमर्रा के जीवन को के जीवन में कोई गड़बड़ी लाए। तो आराम से ये सिस्टम को आप कहीं पे भी किसी भी जगह लगा सकते हैं और किसी भी तरह का स्मेल नहीं होगा। जब अंदर का सॉलिड बच जाता है तो आप उसे निकालकर किसी भी गड्ढे में डाल सकते हैं और ऊपर से पत्तियों से इसको ढक दे सकते हैं। जिन अपार्टमेंट में सिस्टम को लगाया गया, कुछ महीनों बाद जब पूरे शहर की रैंकिंग निकालेगी तो वो उन अपार्टमेंट्स को सबसे क्लीनेस्ट अपार्टमेंट भी घोषित किया गया। और इसकी सराहना और भी बड़े लेवल पे भी लोगों में, आसपास के जिला में भी हो रही है कि इस तकनीक को किया जा सकता है। हम इसकी बात खेती में भी करते हैं कि अगर खेती इस विधि से या इस तकनीक से की जाए तो उसका क्या परिणाम है। अगर हम यूरिया और डीएपी के मार्फत अगर हम बात करें इसके लागत की, तो
अगर इस कंपोस्ट का इस्तेमाल करेगा किसान खरीद कर भी, तो 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक की बचत हो सकती है। अगर धान जैसे फसल की हम बात करें, जो कि एक मुख्य फसल है भारत भारत जैसे देश में, वहां 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर वो फर्टिलाइजर में बचा सकता है। और हर तरह की ईल्ड को हमने जब नापा है, तो हम ये मान रहे हैं और हम देख रहे हैं कि 5 से 10% की ईल्ड लाइकली पैडी में पाई गई। तो एक ही सीजन में 1 हेक्टेयर के लैंड पे तकरीबन 10,000 रुपए तक किसान इसमें बचा सकता है, जो कि एक बड़ा बेनिफिट उसके लिए भी है। दूसरी चीज है कि बहुत सारे रसायन से वो भी बचा रहा है, अपने प्रोडक्ट को भी बचा रहा है, और जब वो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट को लाएगा तो उसको बेहतर प्राइस भी मिल सकती है। तो एक जो सर्कुलर इकोनॉमी का जो पिक्चर है कि हम अपने वेस्ट से खाद बनाएं और खाद से खेती कर पाए, वो ये चीज हो सकता है। अगर आप शहर की बात करें जो सस्टेनेबल किसी भी तरीके से अभी नहीं है, उससे प्रोड्यूस होने वाले जितने सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको इस माध्यम से खाद में तब्दील किया जा सकता है, आसपास के गांवों में भेजा जा सकता है, और वहां से उपजने वाली रसायन रहित या कम रसायन वाली या जैविक वैसी सब्जियों को वापस शहरों तक लाया जा सकता है। तो ये जो मॉडल है, इसके बिजनेस पहलू से भी और टेक्निकल पहलू से भी ये फिजिबल लगता दिख रहा है। इसी में आगे जुड़ते हुए हमारे जितने किसान जुड़े हुए थे इस मुहिम से या इस तकनीक से, जब उन्होंने ऐसे इस लिक्विड फर्टिलाइजर से और सॉलिड फर्टिलाइजर से खेती की, तो उनको हम लोगों ने साथ लाया, और इस तरीके से एक फार्मर्स हार्ट हम लोगों ने IIT कानपुर के अंदर की शुरुआत की, जिसमें कई सारे किसान अपने अपने पदार्थों को, अपने अपने उपज को लाए थे और वहां पे इसको सेल किए थे। एक अच्छी बात हुई कि किसान डायरेक्टली कस्टमर खुद डायरेक्टली किसान से जुड़ पाया, एक बेहतर प्राइस किसानों को इसमें मिल पाया। हेलो। और हेलो, हाँ हरी, कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ फिर बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल, आंसर में थोड़ा। 1 मिनट के अंदर मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ। ओके। तो ये जो मॉडल है सर्कुलर इकोनॉमी की, ये एक पायलट लेवल पे हम लोगों ने IIT कानपुर के अंदर किया है। अगर सिटी में के सस्टेनेबिलिटी की भी बात करें, और तो इस मॉडल के आसपास उसको बढ़ा जा सकता है। इसमें और कई सारी चीजें हो सकती हैं, सप्लाई डिमांड की और क्वालिटी एश्योरेंस की, जिनकी बात हम कर सकते हैं, और लाइक माइंडेड पीपल आकर इस चीज को और आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जो टीम है IIT कानपुर के, कई सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सो फिलहाल के लिए तो इतना ही, और जो भी सवाल होंगे हम उसको ले सकते हैं बाद में। इस विधि को और कैसे किया जा सकता है, कैसे खेती में किया जा सकता है, कैसे सिटी में किया जा सकता है, उन क्वेश्चंस को हम लास्ट में ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हरी। मैं इनका परिचय देने को थोड़ा भूल गया। सॉरी। हरिशंकर जो है वो ग्रेजुएट फॉर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग IIT कानपुर, और डॉक्टर ईशा विशन जो है वो उन्होंने PhD की है बेसिकली IIT गुवाहाटी से। और ये दोनों जो है अभी जो उन्होंने प्रेजेंट किया तो वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कार्यरत है। मैं दूसरा जो हमारा प्रेजेंटेशन है बेसिकली केस स्टडीज है, बेसिकली कंपोज फॉर द सिटी, ग्रो फॉर योरसेल्फ। मैं नुरु पूजा भिड़े जो है उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन करें। उन्होंने मास्टर की है पब्लिक पॉलिसी और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, और वो अपना जो केस स्टोरीज जो है थैंक यू सर। Is my presentation visible?
Yes, Nrutuja. Yes, Priya. Okay. First of all, before beginning, I would like to thank the organizers for giving us this opportunity. Hi everyone, my name is Nrupeja Bhide, and today I'm going to talk about our project for creating a green roof from waste. This project was started by my parents, Priya and Sunil Bhide. Both of them grew up having gardens around them. Especially my father had the opportunity to interact with the pioneers of the urban agriculture movement like Dr. R.D. Doshi and Dabholkar sir. And he was really influenced by their work and by the interactions with them. My parents themselves have had a terrace garden for the past 30 years. And in 2006, we moved to a new place and they had to create a new garden from scratch. But they decided to do it without buying soil. In urban areas, when you buy soil from gardening stores or nurseries, it is usually that fertile topsoil layer that is from nearby farmland areas or from natural ecosystems. And removing the soil from those areas is extremely damaging to those environments. So they decided to use biodegradable waste and create their own medium for growing plants. It started with a single basket of leaf litter, and it has been an incredible journey from that day till today. We want to share this story to change the paradigm of waste management. It is important that we see this waste as a valuable urban resource and not something that needs to be disposed of. We hope that sharing our experience will help in contributing to the knowledge base of urban farming, not only for academics and policymakers in this conference, but also for individual citizens who are interested to experiment with urban farming. So let's get started. The largest component of our green roof is leaf litter. This is a picture from 2006. It is my mother, Priya Bhide. You can see her sitting next to me here in the video. And here she is emptying a bag of leaf litter on our terrace garden. In addition to leaf litter, we also get different types of waste like green waste from the vegetable vendors or fruit peels from the juice vendors, eggshells from the Anda Burjiwala on the street, or banana peels collected from marathons. And all of these are resources which are typically available in any urban setup. In this picture, my father is adding cow dung slurry to the green waste. The problem is that these different types of waste are useful by themselves, but they are often mixed together. And this waste is also mixed with other kinds of waste such as metal, plastic, paper, glass. The city of Pune generates 2,000 tons of mixed waste every single day. And tremendous amount of resources and energy is invested to take this waste far away from the city. So a few presenters in the previous days have talked about food miles, and I think talking about waste miles is equally important. How far does your waste travel, and what happens to it after that? So for us, the waste is usually dumped in landfills or burnt, and this creates massive groundwater pollution and air pollution. And all of these factors combined have a tremendous detrimental impact on the community health, especially for those people who are forced to live in those areas. This is a picture from our locality, and it is a classic representation of the theory of tragedy of the commons. This theory was popularized by Garrett Hardin. He says that every individual thinking of their own self-interest ultimately destroys the community goods. So here you can see that very clearly, that every person who throws a little bit of garbage on this pile thinks, what difference does my little bit make? But if every single person in the city thinks that, then there are soon piles of garbage on every street corner. What we do is use this waste as a resource. So we bring in close to 10 tons of biodegradable waste every single year, and we compost it and use it to grow plants. So our plants are the composters.
We don't have a separate device or model or mechanism, but the plant themselves act as the composting mechanism. And all of this is done without a pinch of soil and without a pinch of chemical fertilizers. Using this waste close to the source creates a decentralized system. And if more and more people adopted this solution, then it would have a significant impact in reducing the volume of waste that goes out on the street. But how can we get more people to adopt this solution? So for that, we have designed multiple models which take into account individual needs, availability of space, time, energy, money. So as per everyone's requirement, they can have their own model. As a lot of presenters have spoken in the past few days, this is not something that you can learn in a day. The knowledge comes from experience. And what we do is try to make this experience as smooth as possible for the people. Nandalalji said very well yesterday in his presentation that it is very important not to let people get discouraged or lose their confidence. And we have also experienced the same thing, that if you help make the process smooth and help people get confident, then they themselves will take on the role of a mentor, share their experience with others and motivate other people. Essentially, what we do is train people to use the resources around them. So we teach them how to compost their waste, how to harvest the available sunlight, how to recycle and reuse their wastewater, and how to make optimum use of the space that is available to them. And use all of these resources to grow their food. And this is the end result. This is a picture of our terrace, and we like to call it our food forest. And as you can see, creating such a green space in the city will obviously also has great environmental benefits. It reduces the volume of waste going out to the landfills. It reduces the cost and energy of transporting this waste there. And it also creates a carbon sink and a biodiversity hub in the locality. Apart from this, there are also benefits to individual community members. Right from people who clean the streets to the waste generators, which is us. This exchange of waste and fresh organic produce creates a space in which new interactions can take place, and it can strengthen the bonds between different members within the community. And it definitely raises the level of awareness and empathy in people. People are more conscious of the waste that they generate, the kind of food that they consume, where it comes from, where it's grown. They're also aware, moreover, they're also aware of the challenges faced by the people who handle our waste every single day, which is also very important, and the efforts required to grow your own food. And to spread this word to as many people as possible, we conduct different kinds of presentations, workshops, training sessions for all age groups. The biggest of these events was in 2019 in November. We had a 2-day exhibition of waste. It was the first of its kind, and more than 2,000 people attended in these 2 days. Here we displayed different models for people to see what are the common mistakes that are made and some easy solutions for people to adopt. We also added some fun elements to show people that this could be something that is enjoyable for you and your family. We tried to target a wide range of audience and understand what motivates them. What is the driving force for composting their waste and creating green spaces? And from all our experiences, right from the first presentation in 2011, we have seen that the primary motivator is produce. It is the pleasure of growing your own food. So now I'm quickly going to run through a few photos of our terrace garden, the produce from our terrace garden. We have bananas, papaya, gooseberries, pomegranate, okra, pumpkin,
This is a pumpkin creeper from coming down from our terrace on the 6th floor. And one day we got a call from an office on the 3rd floor saying that there are 3 pumpkins hanging in our window. This is the incredible power of nature. And we can even harness it in cities, but we just have to give a small helping hand. And निपुजा, आप अगले 3-4 मिनट में कंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, yes sir. Okay. So we just have to give a helping hand and not interrupt this cycle of nature too much. So these are pumpkins, ridge gourd, chilies, tomatoes, cauliflower, different kinds of leafy vegetables. Microgreens can be grown by people who have limited availability of space. And in most people's house, this basket of waste goes out. But for us, it comes in the house and goes to our plants. It is from our neighbor. You can see her in the other picture. And because she doesn't have time, she gives her waste to us and comes to harvest the vegetables whenever she is free. So this factor of creating meaningful personal relationships is really important for the success of any urban agriculture project. And we have to think beyond economic models and simple give and take of products. There are also other natural, better bond with the natural elements such as birds, butterflies, bees. This is a natural beehive, so even though we don't do beekeeping in the traditional sense, there is, because of availability of chemical-free water, there are always 1 or 2 beehives, and when they swarm and leave the honeycomb, we can harvest the delicious organic honey. And the most important people are the residents under the soil. So everyone from the earthworms to the microscopic bacteria and fungi, they are the ones who convert the nutrients from the waste into a form that is available to the plants. So that brings us to the big question, what's next? How do we scale this up? And we feel that it can be done by nudging individuals gently towards urban agriculture, that every small initiative should be encouraged because every little bit counts. It should be embedded in all urban infrastructure projects across the board, not just for public infrastructure, but also in private infrastructure like housing societies, apartment complexes, entertainment hubs, such as shopping malls, multiplexes. Because this is not a luxury. Creating green food spaces is our collective responsibility. And if we encourage all stakeholders, then it would certainly help in driving a bottom-up approach for improving legislation. A lot of people have spoken about the need for legislation for seeing bigger changes in the past few days. And I just want to add one last point before I finish, that yes, legislation is definitely important, but we truly believe that every individual has a power to make significant contribution for making their cities cleaner and cleaner. So compost for the city and grow for yourself. Thank you. Okay. निशांत? हाँ राजू हेलो, जी बोलिए। हाँ, कुछ सवाल लाए होंगे तो हम अभी ले सकते हैं। जी I think some of them have been answered by Hari and Isha, and we can come to those later. But those questions which remain open, Srinivas Lagu has asked, we shred the leaves in smaller particles using shredder. Your guidance would be really helpful. I think Priya, if you want to answer this question. Srinivas Lagu ji ka. Oh, I think some kind of connection issue there. Harishankar, if you want to answer, or Isha, if you want to answer this question, Srinivas Lagu ji का सवाल है कि वो पत्तियों को श्रेडर का इस्तेमाल करके छोटे-छोटे टुकड़े में कर देते हैं। इस बारे में आपका कोई गाइडेंस है तो वो उनको मदद करेगा। हेलो। हाँ बोलिए ईशा। जी जैसा ये बता रहे हैं लागू जी कि ये पत्तियों को श्रेडर से कट करते हैं, तो यस इट वुड बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज साइंटिफिकली देखें तो ये कंपोस्टिंग प्रोसेस को
फास्टन अप कर सकता है, सरफेस एरिया बढ़ाएगा, लेकिन इसको प्रॉपर एक प्रोपोर्शन में डालना जरूरी है। जैसे हम काउ डंग अगर हम मिक्स कर रहे हैं उसके साथ और कोई माइक्रोबियल इनोकुलम हम डाल रहे हैं, तो प्रॉपर कॉम्पोजिशन बैठना जरूरी है ताकि एरेशन प्रॉपर हो सके और मॉइस्चर बहुत ज्यादा ना हो जाए, बहुत ज्यादा कम भी ना हो जाए, ताकि जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो ऑप्टिमम होता है 20 से 23 जो 18 से 23 जो होता है वो मेंटेन रहे। तो ये हेल्पफुल है, शेडर से कट करना सही ऑप्शन है। प्रिया, इफ यू हियर, आप इस सवाल का आंसर देना चाहेंगे? श्रीनिवास लागू जी का सवाल है कि वो श्रेडर का इस्तेमाल करके पत्तियों को छोटा छोटा करते हैं, इस बारे में आपका कोई राय, कोई गाइडेंस? हाँ, दैट्स अ गुड ऑप्शन, क्योंकि स्पेशली आई थिंक उन्होंने नारियल के बारे में पूछा है, क्योंकि वो कंपोस्ट होने में नारियल के सब जो ये है डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको श्रेडिंग करना ही बेहतर है। जैसे ईशा ने बताया कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो क्विकली हो जाता है उसका कंपोस्टिंग। ओके, अगर हम अगले सवाल पर जाएं, कैन यू बी मधुसूदन राव जी का सवाल है, कैन यू प्लीज टेल अस हाउ टू अवॉइड लीकेज ऑन रूफ गार्डन? आई थिंक वी हैव हैड दिस क्वेश्चन क्वाइट फ्रीक्वेंटली इन अदर सेशंस टू। उनका सवाल है कि रूफ गार्डन में अगर लीकेज हो रहा है तो उसके बारे में क्या सुझाव? हाँ, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि और काफी इसलिए जो कॉमन टेरेसेस है उस पर लोग नहीं करने देते, क्योंकि लीकेज का उनको डर रहता है। तो हमने जब शुरू किया है तो एक तो हमारे प्लानिंग में भी था, क्योंकि हम काफी 30 साल से कर रहे हैं, पर उसको पानी कहीं पर भी जमा नहीं होना, ये एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। पानी अच्छे से बह जाना चाहिए। अगर बह जाता है तो लीकेज का बिल्कुल डर नहीं रहता। दूसरी चीज हमने जो की है कि उस पर जहां पर हमने क्यारे बनाए हैं, जैसे 2 ईंट लगा के, तो वहां पर हमने नीचे टार का लेयर दिया है, जैसे कि एस्फाल्टिंग में जो यूज करते हैं, डांबर बोलते हैं मराठी में, उसको पतला करके उसका लेयर हमने दिया है। तो उससे बहुत ही अच्छा, अभी हम तो 15 साल हो गए तो कोई लीकेज नहीं है। Okay, thank you. Then there is a question from Sophie. Do you make a living with your parents on this project, or is it a hobby? It's a hobby for us. So and now a social activity, because we do train lots of people for it, but it's not a living for us, definitely. Okay, and Sophie had also asked about educational background. I think that we have shown in the poster, but if you can just. There's another question from Premila Martis Pereira, again about waterproofing. I think this has been answered. There were other questions in the chat box. We are taking that. Don't worry. Ravikant Dubey ji ka sawal tha, does it not smell? I think it was about Hari and Isha's presentation. If you want to respond to that, because few people have asked the same question. इसके बारे में जैसे कि प्रेजेंटेशन में बता दिया गया कि देखिए इसके 2 प्रोसेस हैं। जब कंपोस्टिंग होता है इसमें किसी भी तरह का स्मेल नहीं होगा, क्योंकि आप एक क्लोज कंटेनर में इसकी कंपोस्टिंग कर रहे हैं और ये सारे सिस्टम अपार्टमेंट्स के प्रीमाइसेस के अंदर लगे हुए हैं और ये सारे सिस्टम स्मूथली काम कर रहे हैं। इशू कहाँ है और इशू कहाँ हो सकता है, वो ये है जब डिग्रेड हो जाता है 15 दिन के बाद। जब 15 दिन के बाद आप डिग्रेडेड लंप को निकालेंगे तो आप उसे किसी गड्ढे में या जहां भी निकाले उसे पत्तियों से या घास से ढक दें, क्योंकि वही एक स्मेल का कारण बन सकता है। उसके अलावा पूरे प्रक्रिया में कभी भी स्मेल का इशू नहीं है। Okay, I think accompanying question from Ravikant Dubey is that how much it costs for a single family? Hari, एक single family, एक अकेले परिवार के लिए इसका कितना खर्चा होगा? रविकांत दुबे जी का। अगर हम इसके इंस्टॉलेशन की बात करें तो ये कहीं भी 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए के बीच में कॉस्ट करेगा।
इसके प्रेजेंटेशन में हमने बताया भी है कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और रिकरिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 200 रुपए में 1 लीटर इनोकुलम अभी हम लोगों को दे रहे हैं। एक 4 लोगों के परिवार के लिए 6 महीने का वेस्ट बड़े आराम से 1 लीटर इनोकुलम से ट्रीट हो जा सकता है। ये भी प्रेजेंटेशन में बताया गया है। तो 200 रुपए का रिकरिंग कॉस्ट हर एक 6 महीने, साल भर में आप देखें तो 400 रुपए में आप साल भर का वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, किचन वेस्ट आप को बाहर नहीं फेंकना पड़ेगा। Again, question from Varshita Khaitan. उन्होंने पूछा था what makes the process fast and is there no need for soil or dry leaves at all? Ishita did answer to that, but I think it would be helpful if everybody can listen to the answer. ये प्रक्रिया जो आपने बताई वो इतनी तेज कैसे है और इसमें क्या सूखी पत्तियों या मिट्टी का कोई इस्तेमाल नहीं होता है? जी जी, तो ये इस प्रक्रिया, ये जो जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में बताया, ये तेज इसलिए है क्योंकि हम उसको उसमें हम माइक्रोबियल कंसोर्शिया डाल रहे हैं जो वेस्ट को डिग्रेड करने में हेल्प करता है, बहुत फास्ट करता है। और जैसे सॉइल और लीव्स की बात कही गई, तो ये एसेंशियल नहीं है कि आप सॉइल और लीव भी डालें इसमें, मगर अगर आप डालना चाहते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। वो एक तरह से लीव का वेस्ट मैनेजमेंट भी करेंगे, और सॉइल डालने से सॉइल के जो अंदर जो प्रेजेंट है माइक्रोब नेचुरली, वो भी उसको हेल्प करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि सॉइल और लीव्स भी डाली जाए। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला इनोकुलम को इस तरीके से बनाया गया है उस कंसोर्शिया का कि अलग अलग तरीके के जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट में, उनको जल्दी से जल्दी इसको डिग्रेड किया जाए। अलग अलग तरह के जो एसिड्स हैं, अलग अलग तरह के जो जैसे सेलुलोज हैं, उनको कैसे ब्रेक किया जा सकता है जल्दी से जल्दी, इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है उस कंसोर्शिया को। अदर स्टडीज भी हुई है स्पेसिफिकली सेलुलोज डिग्रेडिंग बैक्टीरिया की, रिसर्चेस हुई हैं, क्योंकि सेलुलोज को डिग्रेड करना काफी टफ होता है। जैसे कोकोनट लीव्स का एक मेंशन किया गया था, तो वो रिकैल्सिट्रेंट बोलते हैं उसको, कि उसमें हाई लिग्नोसेलुलोजिक मटेरियल होता है जो कि बहुत हार्ड होता है डिग्रेड करना। मगर इस पे भी साइंटिस्ट ने काम किया हुआ है, तो कुछ ऐसे लिग्नोसेलुलोजिक डिग्रेडिंग बैक्टीरिया है, फंगस है, जैसे व्हाइट रॉट फंगस एक है, वो बड़ी हेल्पफुल होती है इन हाई रिकैल्सिट्रेंट मटेरियल को डिग्रेड करने में। इसीलिए कंसोर्शिया का रोल इम्पोर्टेंट होता है, माइक्रोबियल कंसोर्शिया का। Okay, thank you, Harianisha. Varshita Khaitan का एक और सवाल है प्रिया जी से. What do you do to compost? What do you mean by using plants for composting at Priya ji? जैसे कि हम काफी साल से कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम डायरेक्टली जो प्लांट है उसी में ये जो लीफ लिटर या बायो वेस्ट है वो डालते हैं, और उसके ऊपर हम काउडंग स्लरी डालते हैं, जिनको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि काउडंग कैसे मिलेगा, तो वो ये माइक्रोबियल आजकल कंपोस्टर मिलते हैं, वो पानी में मिक्स करके वो भी उसको डाल सकते हैं। तो इसका एडवांटेज हमको ऐसे लगता है कि एक जगह कंपोस्टिंग करो, वो दूसरी जगह प्लांट को डालो। इससे अच्छा जैसे जैसे न्यूट्रिशन रिलीज होता है वैसे वो प्लांट को मिलता है, उससे प्लांट की हेल्थ अच्छी रहती है। अनदर एडवांटेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ लिटर ऐसा होता है कि लीफ लिटर हर किसी का अलग कंपोजिशन है, तो उससे भी प्लांट को फायदा होता है, ऐसा हमारा मानना है। हम हमारा जो बनता है मटेरियल उसका टेस्टिंग भी करवा लेते हैं रेगुलरली। उसमें बहुत हाई ऑर्गेनिक सी है और माइक्रोबियल लोड भी अच्छा रहता है, तो वो माइक्रोबियल लोड से भी अभी जो कचरा डालते हैं उसका अच्छा डिकम्पोजिशन हो जाता है। फीडिंग प्लांट डायरेक्टली, ऐसा आप समझ सकते हैं। Okay, thank you, Priya. अगला क्वेश्चन नंदिनी दीश का है. How does one manage termite? Dry leaves invite termite in areas of Delhi. Termite जो होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको ड्राई लीव्स के कारण वो आते हैं, तो उनके कैसे मैनेज करेंगे? अभी हम तो इतना साल से कर रहे हैं, इतना कभी आया नहीं है। मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि अगर आप माइक्रोबियल लोड उस पर डाल दे
तो कंपोस्टिंग का रेट बढ़ जाएगा। दूसरी बात, ड्यूरिंग कंपोस्टिंग उसमें हीट जनरेशन भी होता है, तो वो हीट के कारण भी हो सकता है कि टर्माइट नहीं आए, बट यू विल हैव टू एक्सपेरिमेंट इन योर ओन, आपके रीजन में आपको करके देखना पड़ेगा। हमको तो अभी तक कभी नहीं आया, क्योंकि हम बहुत जगह से लाते हैं लीफ लिटर, तो अभी तक ऐसा फेस नहीं किया है हमने टर्माइट का प्रॉब्लम स्पेशली। Okay. Then there is another question from Srinivas Lagu. What ratio do we propose? I don't know if it is addressed to Hari. I think it is addressed to Hari. आई थिंक ईशा इसका बेहतर जवाब दे सकती है। ये कोकोनट लीव्स से जुड़ा हुआ सवाल होगा कि कोकोनट लीव्स में अगर पाउडर को मिलाया जाए तो वो किस रेशियो में बेहतर होगा। तो ये जो रेशियो की जो बात कर रहे हैं, जैसे डिपेंड करता है कि वेस्ट जो कौन सा है टाइप का। जैसे कोकोनट लीव्स की अगर बात करें तो मैंने जो अपनी स्टडी जैसे की थी कि जो जैसे 100 किलो का अगर वेस्ट है तो डिफरेंट ट्रायल्स में मैंने किया था, तो उसमें जो रेशियो जो बेस्ट निकला जो वो 5:4:1 है। मतलब 5 उसमें आपका जो लीव्स है, मैंने ड्राई लीव्स पे किया था, और 4 जो था उसमें काउडंग था, और 1 जो था सॉडस्ट था। वो ठीक एक जो नॉर्मल पिट कंपोस्टिंग वाला था। अगर वो आप ट्राई करना चाहें तो आप वैसे ट्राई कर सकते हैं। और बात हमारे जो करंट टेक्निक की है, तो उसमें ड्राई लीव्स का भी आप ये इसमें जो है, जो सोर्स जो काउडंग हम नहीं दे रहे हैं, इसमें हम जो सोर्स है वो माइक्रोबियल कंसोर्शिया दे रहे हैं। तो यही रेशियो हमने इसमें भी अप्लाई किया, तो इसमें ये हेल्पफुल था। तो आप और भी अगर चाहें तो मैं रिसर्च पेपर्स भी कुछ आपको शेयर कर सकती हूँ बाद में, तो इट विल हेल्प मोर कॉम्प्रिहेंसिवली। अगर मोटे मोटे रूप में समझें तो 100 किलो के ड्राई लीव्स में आप कोशिश करें कि बराबर बराबर ही 100 किलो गोबर का भी इस्तेमाल करें। इससे जो, क्योंकि 5:4:1 है, तो अगर टेक्निकलिटी देखिएगा तो 50 किलो में 100 किलो में आपको 80 किलो मिलाना चाहिए। तो 100 किलो अगर आपके पास ड्राई लीव्स होगा तो आप 80 किलो पाउडर और 20 किलो जो ईशा बता रही कि सॉडस्ट की जगह पे भी आप ड्राई लीव्स का चूड़ा तकरीबन 50-50% का आप इस्तेमाल करते हुए इस चीज को कर सकते हैं। यही विधि हम लोग शहरों के हॉर्टिकल्चर वेस्ट में जो पत्तियां और घास और टहनियां जो पार्कों के अंदर निकल रही है कानपुर में, उसमें भी इसी विधि का इस्तेमाल फिलहाल अभी हम लोग कर रहे हैं। गौशाला से गोबर को मंगाया जाता है और बराबर रेशियो में पत्तियों के साथ गोबर को मिलाकर उस पर इनोकुलम का छिड़काव किया जाता है, जिससे फिर खाद बनाई जाती है। Okay, Hari and Isha, there's a frequent question that people are asking is that what are the name of this consortia? If you can tell, or if you have already told, just repeat that. Name as in the name of the bacteria, because it's a consortia, it's mix of different bacterial strain. As I showed in my presentation, it's मिक्सचर ऑफ स्ट्रेन। इसलिए हम मार्केट में देखते हैं कि एजोटोबैक्टर और राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो हम सब पढ़ते हैं, ये अवेलेबल हैं और इन पे काफी काम किया गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन का और वेस्ट डिग्रेडेशन में भी। मगर और भी काफी माइक्रोब्स हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है इन वेस्ट डिग्रेडेशन एंड फार्मिंग एज वेल। तो हमने जो स्ट्रेन यूज की है वो बैसिलस की स्ट्रेन है, जो कि वेल नोन है और एफिशिएंट, उनमें एंटीबायोटिक्स एंजाइम सिक्रीशन होता है जिससे कि वेस्ट डिग्रेडेशन होता है। तो Isha, there's a question from Varshita Khaitan which is related to this. You don't have to aerate the waste for compost. There's a question mark that do you not have to aerate the waste for compost? उसको ऑक्सीजन नहीं देना होता है क्या? और is the carbon and nitrogen being given by the inoculum? ये एक क्वेश्चन है वर्षिता खैतान के, जी। तो इस जो करंट टेक्निक मैंने इसमें प्रेजेंटेशन में दिखाई, इसमें एरेशन का कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो टेक्निक्स हैं उनमें आपको टर्निंग करनी पड़ती है
और रेगुलर टर्निंग, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इस टेक्निक का यही एक फायदा है कि इसमें आपको कोई एक बार आपने वेस्ट डाल दिया मिक्स करके माइक्रोबियल कंसोर्शिया के साथ, तो वो जो ड्रम है उसमें डिग्रेड होता जाएगा। इसमें कोई एरेशन की, आर्टिफिशियल एरेशन की कोई जरूरत नहीं है। और जो कार्बन नाइट्रोजन जो रेशियो है वो खाली इनोकुलम से मेंटेन नहीं होता है। कार्बन नाइट्रोजन जो आपका जो वेस्ट है वो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों मिक्स करके एक ऑप्टिमम बैलेंस क्रिएट होता है, तो खाली इनोकुलम से मेंटेन नहीं होता है वो। Okay, Rushil का एक question, I think both the panelists can respond to that. How many days does it take to make a compost with kitchen waste? I think it's जी, किचन वेस्ट में जैसे स्पेसिफिकली देखें, जो हमारा जो गीला कूड़ा जो वेजिटेबल वेस्ट है, तो वो इस टेक्निक से 12 से 20 दिन में, डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन कैसी है, तो 12 से मैक्सिमम 20 दिनों में हो जाता है। और अगर आप बाकी और जो कन्वेंशनल टेक्निक से आप देखेंगे तो उसमें ज्यादा समय भी लग सकता है, 30 दिन, 1 महीना, 40 दिन भी लग सकता है। हाँ, जैसे अभी हमारे यहाँ तो कन्वेंशनल मेथड से हम करते हैं, तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम, बट वी डोंट माइंड, क्योंकि हमारा वो पेड़ के वहां पर ही डाला रहता है। तो जैसे जैसे इनफैक्ट स्लो रिलीज ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे हमारे पेड़ को होता है, तो हमारे लिए अगर थोड़ा टाइम भी वो डिकम्पोज होने में लगता है, जैसे कि 30 डेज 40 डेज तो चल जाता है। पर हमारे यहाँ माइक्रोबियल लोड का, जैसे अभी ईशा मैडम ने बताया कि हम जो सॉइल हमारे टेस्ट करके लेते हैं यहाँ पर, NCSC करके बड़ी ये है इंस्टीट्यूशन, तो हमारे यहाँ 1 ग्राम में 10⁻11 10⁻7 से 10⁻11 यहाँ तक के माइक्रोबियल लोड रहता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही 15-20 दिन में हो जाता है, पर लोगों के यहाँ जब वो शुरू करेंगे टाइम लग सकता है, क्योंकि माइक्रोबियल लोड उतना नहीं रहेगा। तो वो लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और हम जब लोगों को बताते हैं तो ये चीज बता के रखते हैं कि इवन इफ इट टेक्स टाइम, जो भी निसर्ग निर्मित जो है, जो बना है, वो तो डिग्रेड होने वाला ही है। बस हमको देखना है कि हमको गंदी बदबू नहीं आए, लिचेट ना आए, इतना ख्याल हमको करना है। बाकी नेचर टेक्स केयर, जो भी बना है नेचर में वो तो डिग्रेड होने वाला ही है। Okay, thanks. There's a question from Vasudevan TJ. Can you give some guidelines for the community for the solid waste management after desegregation? How to dispose of the liquid water from it? Waste management अगर कोई community करना चाहे अपना solid waste management segregation करके, तो क्या कैसे करें, और उसमें जो liquid water आता है उसको कैसे उसको dispose of करें? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है सेग्रीगेशन का होना। अगर सेग्रीगेशन आप अपने कम्युनिटी में करा पा रहे हैं, उसके बाद तमाम तरह के तकनीक उपलब्ध हैं मार्केट में जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें से एक तकनीक जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, आप सबसे जरूरी सेग्रीगेशन को कराइए। सेग्रीगेशन 2 अलग अलग डब्बों में कराइए या 3 में करा सकते हैं, क्योंकि हजार्डस वेस्ट का एक अलग डब्बा होना चाहिए। और जो ऑर्गेनिक वेस्ट आपके यहाँ से घरों से निकल रहा है, आप उसको पिट कंपोस्टिंग सबसे साधारण, आप एक गड्ढा खुदवा कर उसमें वेस्ट को कंटिन्यूअसली डाल सकते हैं और वो धीरे धीरे खाद बन जाएगी। या आप किसी डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि खंबा कंपोस्टिंग बहुत फेमस है डेली डब का। आप उस तरह का एक खंबा पॉट्स रख सकते हैं, उन पॉट में आप वेस्ट को डालें। और या गुड़गांव के अपार्टमेंट्स में आजकल बहुत बड़े बड़े टम्बलर्स लग रहे हैं, बड़े बड़े बास्केट लगाए जा रहे हैं। उनमें वो लोग वेस्ट को रेगुलरली अपने वेस्ट को डाल रहे हैं, जहाँ पे 1000 फ्लैट्स हैं, और वहाँ पे वो कंपोस्टिंग बड़े आराम से 30 से 40 दिन में कर पा रहे हैं। हमारी विधि में ये है कि वो कम समय में हो पाएगा और उसका थोड़ा सा अलग तरीके का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लिक्विड वाटर, हाउ टू लिक्विड वाटर जनरली मॉइस्चर के फॉर्म में होता है आपके ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर। तो अगर आप कंपोस्टिंग करेंगे तो हमेशा आपको ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ मल्चिंग का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा ड्राई लीव्स या घास डालना पड़ेगा। वो इसीलिए डाला जाता है कि जो एक्सेस लिक्विड वाटर है
और जो ड्राई लीव्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर दें। तो जब आप घास या फिर सूखी पत्तियां अपने ऑर्गेनिक वेस्ट में डालेंगे तो आपका लिक्विड वाटर का जो इश्यू है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। Okay, thanks. Then there is a question from Nandini. Transition time for anaerobic material into burying it in soil is quite difficult for common city dwellers. Don't you think complete aerobic process is more doable for people away from land? जिन लोगों जो शहर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि anaerobic जो मटेरियल है उसको मिट्टी में बरी करना, गाड़ना, और उसमें ट्रांजिशन टाइम ज्यादा लगता है, तो क्या कि एरोबिक प्रोसेस बेहतर नहीं है? इसका जवाब आप में से कोई भी दे सकते हैं? तो एरोबिक को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आवर प्रोसेस इज फुल्ली एरोबिक, वी डोंट यूज एनारोबिक composting process. Okay, Hari, a quick question है वर्षिता का again. The leftover lump is not ready compost. Can it not be directly used as compost? लेफ्ट ओवर लंप को आपको पहले ड्राई करना पड़ेगा। अगर आप उसको सन ड्राइंग कर दें 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कंपोस्ट। Okay, we are almost reaching 4:15, which is our official time to close the discussion. We will take a couple of questions. There's a question on chat by Rajesh Jain. He said that can be spread through schools and can it be made as an entrepreneurial model? At this juncture will be it's an incomplete question, but I think he's asking about how to spread this these information, these knowledges, these experiences in children, among children and among other people, and he's asking for some inputs. ये स्कूल्स के माध्यम से बहुत अच्छे से कराया जा सकता है। हम लोगों ने एक छोटा सा मॉडल यहाँ बनाने की कोशिश की थी, जिसमें क्योंकि स्कूल के आप समझ लीजिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे जो बच्चे हैं उनको आप सेग्रीगेशन सिखाते हैं, तो वो सिर्फ खुद तक नहीं सीखते, वो अपने घरों तक भी ये सेग्रीगेशन को ले जाते हैं। और इस पे एक बहुत अच्छी किताब बेंगलोर की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट राउंड टेबल में एक किताब पब्लिश की गई थी, जिसमें अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज से कैसे आप स्कूल में बच्चों को सिखा सकते हैं कि सेग्रीगेशन क्या चीज है, किन किन तरह के डब्बों में क्या कलर कोड फॉलो कर सकते हैं, किस वेस्ट से क्या उपयोगी पदार्थ रिकवर किए जा सकते हैं, इन सब को एक्टिविटी वाइज कैरेक्टराइज किया गया है। वो किताब भी अवेलेबल है अमेजन पे, जहां से मैंने ये किताब मंगाई थी अपने लिए। उसको लेकर भी आप स्कूलों तक जा सकते हैं और स्कूलों में इस एक्टिविटी को करा सकते हैं। और डेफिनेटली स्कूल के अंदर जो वेस्ट है उस वेस्ट से अगर आप कंपोस्टिंग करके और वहां पे अगर गार्डन, ऑर्गेनिक गार्डन क्रिएट कर पा रहे हैं, जो बनारस के कई स्कूलों ने किया है, कानपुर में कुछ स्कूलों ने किया है, तो वो बच्चों के लर्निंग के लिए भी बेहतर होगा। Priya, you would like to respond to that? स्कूल्स काफी स्कूल में भी आजकल उनको कुछ एनवायरमेंटल का ये रहता है, सब्जेक्ट रहता है या कुछ बनाना पड़ता है स्कूल में, तो काफी स्कूल्स में मैं गाइडेंस देती हूँ और यहाँ पर लोग मेरा वर्कशॉप भी रखते हैं। और उसके बाद काफी स्कूल्स ने यहाँ पर टेरेस पर उनके शुरू भी किया है, वो रीयूज कंटेनर्स जो अपना कलर का बकेट्स रहते हैं उसमें करते हैं और अच्छे टीम बनाते हैं। जैसे कल भी एक मैडम ने प्रेजेंटेशन दिया था, तो उसी टाइप से स्कूल में अच्छा कर रहे हैं और कर सकते हैं, क्योंकि एवरी स्कूल में तो नहीं हो रहा है, तो वहां पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल डेफिनेटली है। सब इंस्टीट्यूट्स में इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि ये है इस तरीके का पोटेंशियल, जहां पर हम और काफी लोग हम देखते हैं कि वो करना भी चाहते हैं, उनको एक बेसिक साइंस बिहाइंड इट अगर हम समझाते हैं तो दे कैन टेक इट फॉरवर्ड ऑन देयर ओन। Okay, yes.
Hari, can you just type the name of the book, because people are asking what's the name of that book that you just referred in the chat box, so that everybody can just note that. श्योर निशांत. एक क्वेश्चन हम और लेंगे. There's a question that Miss Priya, are you planning for any guiding session in the coming days? And I think this we can extend to Hari and Isha also. आपका अगर लोग जो यहाँ पे participate कर रहे हैं, if they want to join any guiding sessions where you tell them about your experiences and your processes, methods in detail, so you can just tell us about that. वैसे मेरा Facebook पेज है, जो स्लाइड मैंने शेयर की थी, सॉइल सर्किट, चाहे तो मैं टाइप करूंगी चैट बॉक्स में, उस पर मैं वीडियोस डालते रहती हूँ, और पर्सनली भी कोई उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, या soilcircuit@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है, वहां पर भी आप मेल कर सकते हैं. वी विल डेफिनेटली लव टू डू दैट. जो मराठी स्पीकिंग लोग हैं उनको मैं बताना चाहूंगी, मैंने एक बुक लिखा है, हिरवा कोपरा, मैं नाम में लिखूंगी, जो कि सब मेरे टेरेस गार्डन का जो एक्सपीरियंस है विदाउट सॉइल एंड हाउ वी मेक इट एंड एवरीथिंग, उसमें भी लिखा है. मराठी बुक हिरवा कोपरा. और सॉइल सर्किट इज माय फेसबुक पेज. तो जो अगर कोई चाहते हैं ग्रुप में, तो हम कुछ ऐसा अरेंज कर सकते हैं. डेफिनेटली आई विल लव टू डू दैट. Sure. Thank you, Priya. Hari, you would like to respond very quickly to that? कोई अगर एक ग्रुप के रूप में अगर फॉर्मेशन हो पाता है तो डेफिनेटली हम लोग इसका ट्रेनिंग सेशन आईआईटी कानपुर के अंदर कंडक्ट करा सकते हैं. फिलहाल कई किसान जो हमसे जुड़े हुए हैं वो रेगुलरली आईआईटी कानपुर आते हैं और इंडिविजुअल और पर्सनल लेवल पे वो इस विधि को सीख कर जा रहे हैं. Okay, thanks. Further, मेरे email ID भी chat box में shared है, तो further in future we can connect definitely. There's a request from Varshita. Just one last question we'll take. It would be great if you could answer this. Do you keep adding waste every day in a particular drum, or is it one-time feeding of waste to a particular drum? Hari, quick response to that. नहीं, रोज आप डाल सकते हैं वेस्ट को. आप रोज अपना वेस्ट डालें और अप्रोक्सीमेटली 5 ml के आसपास तक, डिपेंडिंग ऑन द वेस्ट. 1 kg के लिए 5 ml, 100 kg के लिए 500 ml आप इनोकुलम थोड़े से पानी में मिलाकर डाल सकते हैं. अगर आपका वेस्ट लार्ज अमाउंट में निकल रहा है तो एक ड्रम एक दिन में फिल हो जाएगा. एक ड्रम की कैपेसिटी तकरीबन 100 से 125 किलो तक होती है. अगर आप घर में लगा रहे हैं तो रोज उसमें 1 किलो से ज्यादा वेस्ट नहीं डाल पाएंगे. और ये आराम से आप इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई बैच प्रोसेस है नहीं कि एक बार में ही डालना जरूरी है. आप रोज उसमें थोड़ा थोड़ा वेस्ट डालें और हर दूसरे तीसरे दिन पे भी इनोकुलम डाल सकते हैं या रोज भी इनोकुलम डाल सकते हैं. कोई कंस्ट्रेन नहीं है. Okay, thanks Hari. Now we will have to formally close this webinar for today. We saw tremendous amount of questions in today's Q&A session. I think it was about 50 questions for a very short period of time. We tried to get as many responses as possible, but if the remaining questions, you can stay for a bit longer if you want, and the panelists could respond to that. Or we may also send you over the email. If you can just send the questions again to prc.india@yahoo.com. A formal request on